हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू NIOS लाइव सेकेंडरी क्लासेस। सेकेंडरी क्लास की NIOS के लाइव सेकेंडरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 28 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो लेट जस्ट डिस्कस। In this chapter we will going to discuss about recognize carbon as constituent of all living matter and physical world. Appreciate the existence of large number of carbon compounds. Then we're going to discuss about identify various sources of carbon compounds. Then we're going to discuss how to explain various allotropes of carbon and compare to their properties. Next we're going to discuss about describe the preparation of oxides, how to describe the preparation of oxides of carbon and mention their properties. Then we're going to describe about recognize catenation as the unique property of carbon, that is the ability to form chain branches and rings leading to the formation of large number of carbon compounds. Then we're going to classify hydrocarbons as a saturated and unsaturated compounds. The next objectives of this chapter are recognize different functional groups like alcohol, aldehyde, keto, carboxylic acid and halogen, and describe about the alkane, alkene and alkyne compounds. Then we're going to describe about homologous series that is very helpful in IUPAC nomenclature. Next we are going to discuss about how to appreciate that organic compounds have unique name of IUPAC nomenclature. Then last topic of this chapter is the name of simple organic compounds and how to describe its nature, properties and uses and some useful organic compounds. So let's just begin with the first topic. Okay, so all of you know that carbon is very important as element because carbon is having very unique property. ये चैप्टर जो है हमारा वो कार्बन चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री हैविंग मेनी ब्रांचेस बट if we talk about organic chemistry, तो in organic chemistry organic compounds are those compounds which having carbon. So organic compounds की स्टडी के लिए हमें कार्बन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. Organic compounds are those compound which are present in around us. हमारे चारों तरफ हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हॉर्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस चैप्टर विथ फर्स्ट स्लाइड. सो let's just discuss about the introduction. So although cells are having 70 to 95% of water, the rest of the mostly consist carbon based compounds. So in our body or any other organic compounds having around approx 70 to 95% of water and rest of the part is made up from carbon. For example, अगर आप किसी भी चीज़ को burn करते हैं तो after burning this compound what you get some kind of ashes और powder या राख जिसको कहते हैं हमें मिलता है. So that is वो है क्या बेसिकली दैट इज द कार्बन. तो किसी भी चीज को बर्न करने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एश एज वेल एज कॉल्ड एज कार्बन.
तो कार्बन जितने भी हमारे अराउंड कोई भी एलिमेंट हमें दिखेगा, कोई भी कंपाउंड हमें दिखेगा, कोई भी मैटर हमें दिखेगा, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। दैट इज वाई वी क्रिएट एन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डेटिंग, किसी भी कंपाउंड का हम कार्बन डेटिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड हो चुकी है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। So next is, as you know, protein, DNA, carbohydrates. What are carbohydrates? Made up of from carbon plus hydrogen, and lipids all are the compounds of carbon atoms bonded to each other and to atom of each element. So in DNA, in protein, in lipids, what they are made from, they are basically made from carbon. तो कार्बन के साथ अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दीज आर मेकिंग अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, और वो चेन लाइक स्ट्रक्चर जो कंपाउंड का बनता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो उसमें कार्बन के साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. दैट इज वाई वी कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So if we talk about the other element, so the other element rather than carbon are oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. These are some elements जो कि बेसिकली कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे जाते हैं, जिनसे बेसिकली हमारा प्रोटीन की अगर हम बात करें या डीएनए की बात करें तो इनमें बेसिकली इन ये जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन के बाद इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है. Now moving to the next slide. So what are the importance of carbon compounds? So what are the importance of carbon compounds? As I said, I told you earlier, क्या है कि like अगर हम बात करें फूड, स्टार्च, फैट्स या विटामिन्स, प्रोटीन्स की, so these are having carbon. इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है. If we talk about fuel like wood, coal, alcohol, petrol, these are also having carbon. Household and commercial articles like paper, soap, cosmetics, oils and paints all having carbon. Textile industry like fabrics like cotton, wood, silk, linen and rayon and nylon also having carbon. If we talk about drug, medicine industry, then what we get, the disinfectant like penicillin, quinine, aspirin, sulfur drug, these are also having carbon. So what I am saying कि कहने का मेरा मतलब है कि कार्बन जो है हमारा जो भी चीज़ें हैं उन सभी में प्रेजेंट है, विदर इट इज़ हाउस होल्ड मटेरियल, कॉमर्शियल आर्टिकल, विदर इट इज़ फ्रॉम टेक्सटाइल फैब्रिक इंडस्ट्री, विदर इट इज़ फ्रॉम मेडिसिनल इंडस्ट्री. सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो कार्बन क्या है हमारा? कॉमन है. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग वेरी यूनिक प्रॉपर्टी. So moving to the next slide. So what are the other importance of carbon? The other importance of carbon, poisons like optimum styrene, these are also called as poison compound. So बहुत सारे poison compounds होते हैं जिनको making में इसको basically हम use करते हैं, like rat kill poison, okay. Then if we talk about perfumes like vanillin, camphor is like, हम इसको क्या बोलते हैं? ये कपूर होता है, ठीक है. तो ये कपूर भी जो है इसमें भी क्या पाया जाता है? बेसिकली कार्बन. एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड एंड TNT, these are explosive material and these also having carbon. Then other dyes like indigo dye, Congo dye, malachite green, these are also having carbon. Then if we talk about war gases like mustard gases, so mustard gases क्या है? Basically methane,
okay, then chloropicrin, then lewisite. These are some examples which having carbon. So moving to the next slide. Organic chemistry is the study of carbon compounds. As I said earlier कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन. तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक chemistry. Okay, so what is organic chemistry? Let's just discuss. The study of carbon compounds. Organic chemistry focuses on any compounds with carbon. So for example, if we talk about glucose, what is the formula of glucose? C6H12O6. So in this case, what are the elements of this compound? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन का जो मोल है वो 6 है, देन हाइड्रोजन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 6. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? C6H12O6. दिस हैविंग कार्बन, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. वो ग्लूकोज क्या हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज कार्बन इसमें क्या है? प्रेजेंट है. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Organic compounds can range from the simple, that is methane, to complex molecules like protein. So organic compounds is basically are of two types, simple organic compounds and complex organic compounds. तो हम simple and complex कैसे कह रहे हैं? In the sense of molecular structure. Okay, simple है, like अगर हम बात करें methane की, तो what is the formula of methane? The formula of methane is CH4. एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. आपने उसका स्ट्रक्चर बायोलॉजी के चैप्टर्स में भी देखा होगा. तो उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं एंड दे आर बेसिकली जॉइंड विथ हाइड्रोजन एज वेल एज उसमें अमीनो ग्रुप होता है लाइक NH2CO बॉन्ड. CONH2 bond is there. Okay, so CONH2 bond is there, so that is why we called as there is a very protein structure is very complex in nature, that is why we called as complex organic compounds. So दो तरीके के organic compounds होते हैं, एक होते हैं simple, एक होते हैं complex. Okay, so complex compound जो होते हैं उनके weight कैसे होते हैं? Over approx 10 to the power 5 10 to the power 5 Daltons. Okay, organic chemistry is the study of carbon compounds. So organic chemistry में हम basically करते क्या हैं? Study करते हैं किनकी? Carbon compounds की. So carbon atom are the most versatile building blocks of molecules. Carbon is very versatile in nature. Why this is possible? Because of their bonding and their nature to form a long chain like structure. If we talk about carbon, so how many electrons are there? Total 6 electrons are there and has 2 in first shell and 4 in the second shell. तो कार्बन जो होता है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सेकेंड शेल की अगर हम बात करें तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 4 electrons are there in second shell. So carbon has little tendency to form ionic bonds. तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन 2 तरह के बॉन्ड बनाता है. कौन कौन से? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट, एज वेल एज इन सम केसेस इट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ionic bond. So basically there are 3 types of bonds in your syllabus. There are only 2 types of bonds. But होते कितने types के? 3 types of bonds होते हैं.
नंबर 1 इज आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्ड. तो आपके सिलेबस में आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड है. देयर इज अ अदर टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट विल डिस्कस लेटर. ओके, सो कार्बन फॉर्मिंग टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड. कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड. Instead, carbon usually completes its valence shell by sharing electrons with the other atoms in 4 covalent bond. Carbon atoms are the most versatile building blocks of molecules. So as I told earlier कि कार्बन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल इन नेचर है बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग. तो कार्बन, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? विदर इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, जिसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं. टेट्रावैलेंट क्यों? बिकॉज 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है. तो यही रीजन है कि कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल इन नेचर एंड कार्बन हैविंग वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज कार्बन इज हैविंग वेरी यूनिक प्रॉपर्टी एंड इट इज वेरी वर्सेटाइल इन नेचर. So moving to the next slide. This is about catenation. So अभी हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कार्बन में कि 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज व्हाई कार्बन इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट इन नेचर. सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज? इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन. क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. सो व्हाट इज कैटिनेशन? इज unique property of carbon atom to bond with each other to forming long chain of carbon of different size and shapes. So carbon, if you can see on your screen, there are some different kind of structures. Some are open chain structure and some are ring like structure. So these are open chain structure. क्यों open chain कह रहे हैं? Because इसका अगर हम लास्ट वाला पार्ट देखें, लास्ट कार्बन देखें, साइड्स के जो कार्बन है, they are free. ये क्या है? फ्री है. That is why they are called as open chain structure. Open chain structure. So this is also our open chain structure. Okay. But if we talk about benzene, so what is the structure of benzene? If you can see, there is a cycle. Free नहीं है. यहाँ पर इसकी sides क्या हैं? Free नहीं है. So these are called as cyclic structure. Cyclic और cyclic compounds. इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो this is also cyclic compound because bonds आप देख पा रहे हैं, सभी सारे bonds बने हुए हैं और ये cyclic form में. So this is also an example of cyclic structure. So what is catenation? Basically catenation है क्या? Catenation is the property to form bonds. If we talk about carbon, occurrence of carbon. So carbon जो होते हैं, carbon जो elements होते हैं, उनका extraction कैसे होता है? Extraction की अगर हम बात करें, इसके पहले वाले चैप्टर में जहाँ आप लोगों ने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन होता है. इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर. तो मोस्ट रिएक्टिव है तो वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे. अगर वो मॉडरेटली रिएक्टिव है एलिमेंट्स हैं, देन दे आर ऑल्सो फॉर्म कंबाइंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स. एंड इफ दे आर लीस्ट रिएक्टिव और बहुत कम रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर वो रिएक्शन नहीं देते हैं, सो दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एज फ्री स्टेट. तो वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, दे आर लीस्ट रिएक्टिव. दैट इज वाई वी कैन से एज दे आर फ्री, दे आर इन फ्री स्टेट. तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते. तो कार्बन का ऑकरेंस कैसे होता है, कार्बन का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट. कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. ओके, सो कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल लाइक वुड एंड कोल, चारकोल,
coke, petroleum, natural gases, for example methane, biogas and Mars gas. These are some examples जो कि एक रिसोर्स है किसका, कार्बन का. Moving to the next slide. As you can see on your screen, there are some picture. So ये pictures हैं किसके? This is the picture of wood. This is the picture of coke and this is coal. Okay? तो ये सारे क्या हैं? इनसे हम कार्बन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. So they are basically carbon. Moving to the next slide. So carbon is present in compounds like carbonates, hydrogen carbonates, etc. So what are hydrogen carbonate? Like HCO3. तो HCO3 क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है. अभी आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, 1:3. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन हमारा प्रेजेंट है. Carbon is found in free state as diamond, graphite and fullerenes. So what are fullerenes? Fullerenes are basically the allotropes of carbon. तो कार्बन जो होता है वो कई स्टेट में पाया जाता है, कई स्ट्रक्चर में पाया जाता है. तो उनमें से एक है हमारा फुलरीन्स. फुलरीन्स बेसिकली होते क्या हैं? इनमें कार्बन की जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 60 या 60 अबव होते हैं. एंड दे आर बेसिकली बकी बॉल स्ट्रक्चर लाइक शेप. बकी बॉल और बक मिंस्टर स्ट्रक्चर इनको हम बेसिकली बोलते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज फुलरीन्स. So if you can see the picture, there are some pictures. This is the example of gases. Then the picture of biogas and the picture of diamond. All are basically एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो डायमंड भी क्या है? हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है. सो बॉन्डिंग इन कार्बन. सो हाउ कार्बन बॉन्डेड विथ अदर एलिमेंट्स. कार्बन या कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में. अगर हम बात करें जीरो ग्रुप एलिमेंट को छोड़ करके, तो जीरो ग्रुप एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्टेबल इन नेचर. वाई दे आर स्टेबल? बिकॉज दे आर कंप्लीट देयर ऑक्टेट. उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल दे आर स्टेबल इन नेचर. सो दैट इज वाई दे कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे ऑल आर इन गैसियस स्टेट. तो वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं एंड देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीटली filled, so that is why they are called as inert gases. तो बाकी जो रेस्ट के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, दे ऑल आर अनस्टेबल इन नेचर एंड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन के केस में क्या होता है? कैसे बॉन्ड बनता है? लेट्स जस्ट डिस्कस. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कहते हैं. बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नाम से है. कन्फिगरेशन. सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. ओके, एंड इट्स कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. So there are 3 options. Whether it gain 4 electrons, whether it is donate 4 electrons or share 4 electrons. तो अगर वो donate कर रहा है या accept कर रहा है, on that case electronic bond is formed or ionic bond is formed. But if it share 4 electrons, अगर वो 4 electrons share करके बना रहा है bond, on that case it will form covalent bond. कौन सा bond बनाता है? वो covalent bond बनाता है. So
It does not gain 4 electron because it is difficult to 6 protons to hold 10 electron. Okay, तो 6 प्रोटॉन को होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही अगर प्रोटॉन है, ऑन दैट केस वो न्यूट्रल होगा. क्या होगा? न्यूट्रल होगा. और अगर इन केस हमारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ऑन दैट केस E/M रेशियो इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ऑन दैट केस वो स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा, वो स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा. ओके तो यहाँ पर क्या है हमारा, अगर ऐसा होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है, तो गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? पहले 6 थे प्लस 4 तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट प्रोटॉन तो हमारे 6 ही रहेंगे ना. तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना दैट इज नॉट ईजी. दैट इज वाई वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? It does not lose 4 electrons because it need a large amount of energy to lose 4 electrons. तो अगर कार्बन है उसमें से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऑन दैट केस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लूजेस चाहिए हमें कि वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करे. दैट इज वाई वो लूज भी नहीं करेगा. ऑन दैट केस होगा क्या? अगर वो गेन नहीं करेगा, लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ऑन दैट केस क्या होगा? इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. So 4 electron share with other atoms attain stability resulting in the formation of covalent bonds. So this is the example of covalent bond. किसका example है? Covalent bond. और पहले वाले जो दो थे वो किसके example थे? आयनिक के. बट किन्हीं केसेस में जो हमारा कार्बन है वो भी आयनिक बॉन्ड बनाता है. तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ऑन दैट केस कार्बन फॉर्मिंग विदर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन. तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है तो उसको हम कैटायन बोलते हैं, निगेटिव आयन बनाता है उसको एनायन बोलते हैं. ऑन दैट केस सो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं. कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या. लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में. इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं. कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है. भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव. बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें. घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें. आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है. आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें. भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें. और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें. साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें. 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी. किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046. ईमेल करें ncov2019@gov.in.
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। सो वेलकम बैक डियर लर्नर्स आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक आशुतोष कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कार्बन इज फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो कार्बन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है? सी कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड किसी केसेस में बनाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में हम बेसिकली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें बेसिकली या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है ऑन दैट केस उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दिस इज नोन एज कार्बो कैटायन। इसे हम कहते हैं कार्बो कैटायन। और अगर कार्बन के केस में वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है ऑन दैट केस इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं कार्बीन एनायन। ओके, कार्बीन एनायन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको बेसिकली मिलेगा। जब सीनियर सेकेंडरी के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो सीनियर सेकेंडरी चैप्टर्स में हम बेसिकली देखेंगे वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हम बेसिकली देखते हैं जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, बट दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन नेचर। तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं, आफ्टर दैट दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि कार्बन जो है हमारा वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाता है, बट बहुत
कम केसेस में ऐसा हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बोकैनाइन बोलते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बिन एनाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बन पर फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिकल के फॉर्म में जनरेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो होता है शेयरिंग होती है वो इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑन दैट केस वी कॉल्ड एज कि उस पर कौन सा है, वो बेसिकली फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। तो 3 तरह के बॉन्ड इसमें देखने को मिलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। सो थैंक यू फॉर आशुतोष कुमार मिश्रा जी। So moving to the next slide. So if we talk about carbon, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा, बिकॉज अभी हमने जाना कि उस केस में एनर्जी लगती है और हमारा जो बॉन्ड है वो भी कहीं कहीं पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें भी देखने को मिलता है कि वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे बना रहे हैं। ओके, so let's just discuss about bonding in carbon. If we see, then अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में होता क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन, कैपिटल C. What is the atomic number? 12 and atomic weight is 12, atomic number is 6. तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप्स या 3 आइसोट्रोप्स होते हैं। आइसोट्रोप्स कौन कौन से, कार्बन 16, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 जो है वो बेसिकली कार्बन डेटिंग में यूज होता है, कार्बन डेटिंग। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 4. सो 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन L shell. So what is the structure? So this is the nucleus of carbon. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मेथेन, तो मेथेन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनेगा बॉन्ड मेथेन का, let's just discuss about bonding in case of methane. तो मीथेन के केस में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑल्सो 1, एंड इन द केस ऑफ कार्बन दिस इज 6, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 4. तो अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएं तो लेविस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन, और लेविस स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको हम डॉट या क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने डॉट से डिनोट किया है। और मेथेन के केस में 4 हाइड्रोजन है, तो हम 4 हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे शो कराएंगे एंड इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं। सो अभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले के पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। एंड इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो इस तरीके से कार्बन की बॉन्डिंग होती है एंड दिस इज these kind of bonds are making by sharing of electron, so that is why we called as covalent bond. So moving to the next slide, formation of covalent bond. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between atoms. The sharing of one pair of electron result in the formation of single covalent bond. So if there is only single electron sharing, अगर केवल single electron sharing हो रही है, on that case we called as single bond, because वहाँ पर single bond बन रहा है. If there is a 2 electron sharing, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहां पर कौन से बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड. बट इफ वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज डायमोलिकुलर इन नेचर, ऑन दैट केस देयर आर
3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऑन दैट केस देयर आर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग. सो डबल बॉन्ड किस केस में होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2. तो H2 के केस में हम देख लेते हैं कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है. इन केस ऑफ H2 हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म. Let's just discuss about this. So moving to the next slide. So how H2 bond is formed? तो H2 के केस में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और 2 हाइड्रोजन हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ. अब इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने बिल्कुल मिडिल पर रखेगा और ये भी मिडिल पर रखेगा. Then after sharing what will happen? This hydrogen having 2 electron because ये दोनों की प्रॉपर्टी है, and this hydrogen also having 2 electron. तो अभी क्या है, हाइड्रोजन हमारा स्टेबल हो गया. तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली सिंगल स्टेबल नहीं होता है, वो डायमोलिकुलर फॉर्म में स्टेबल होता है, बिकॉज डायमोलिकुलर फॉर्म में उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया होता है अपने ही एलिमेंट से. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is the structure of bonding in case of hydrogen. आप देख पा रहे होंगे this is called as Lewis structure. इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? Lewis structure. Why? Because Lewis साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था. That is why we called as Lewis structure. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर कंबाइनिंग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. दैट इज वाई यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड. और ये हमारा डायमोलिकुलर फॉर्म है हाइड्रोजन का. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाउ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? तो इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, so what is the atomic number of oxygen? The atomic number of oxygen is 8 and the electronic configuration is 2 and 6. तो 2 and 6 हो जाएगा. तो होगा क्या, अगर डायमोलिकुलर फॉर्म में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शो कराएंगे. व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरीके से ये वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा. Then after sharing, this oxygen also having 8 electron and this oxygen also having 8 electron. तो आप काउंट करके देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है. That is why they are now stable in dimolecular form. आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर है. ओके, सो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे. सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी आउटर शेल में बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की उसने अदर ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, डायमोलिकुलर फॉर्म. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग इन केस ऑफ ऑक्सीजन. सो अभी हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ नाइट्रोजन. हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के केस में कैसे होता है. So what is the symbol of nitrogen? The symbol of nitrogen is N and the atomic number is 7. So what is the electronic configuration? 2 and 5. The electronic configuration is 2 and 5. इसको हम SPDF में भी फिल कर सकते हैं. तो 2 and 5 is the structure. Okay? डायमोलिकुलर फॉर्म में 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ. अब इसका हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे. वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. कितने की शेयरिंग करेगा? 8 - 5 दैट इज 3. तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. तो 5 में से 3 जो है वो शेयर करेगा, 2 अपने पास रखेगा एक लोन पेयर के फॉर्म में. इस तरीके से ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक लोन पेयर के फॉर्म में रखेगा. तो आफ्टर शेयरिंग यू कैन सी दैट बोथ नाइट्रोजन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स.
तो देर इज नो चार्जेस बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. दैट इज वाई देर इज नो चार्ज जनरेटेड. फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो स्टेबल नहीं है, नो ऑक्टेट फॉर्म. डबल बॉन्ड बना रहा है, स्टिल इट इज नॉट स्टेबल. और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जो कि लास्ट के केस में है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. Moving to the next slide, formation of triple covalent bond in the case of nitrogen. So डाइनाइट्रोजन के केस में आप देख पा रहे होंगे, this is the case of hydrogen. एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा. This is the case of फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2881. तो अपने ही फ्लोरीन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा हमारा. उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन के केस में दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसा होगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा. अब 2 ऑक्सीजन ने शेयर किए तो 4 इसके पास होंगे. इस तरीके से 2 इधर शेयर किए तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. अब ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ये किसका है, बेसिकली कार्बन ट्राईफ्लोराइड. जैसे हमारा CCl3 बनता है, बिल्कुल वैसे ही CF3 भी बनता है. तो दीज आर सम कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको हम बेसिकली लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं. तो आपकी स्क्रीन पर मेथेन का और एथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है. दी स्ट्रक्चर बेसिकली एक्चुअली आपके पेपर में एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन और एथेन. तो आपको बेसिकली वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो कार्बन है उसने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं. ओके, तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा CH4. ये बेसिकली CH4 का स्ट्रक्चर है. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बन ने क्या किया है, एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है. बट यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है. तो द फॉर्मूला इज C2 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन आर देयर. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं. सो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन. तो 3 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इट इज़ मोर देन नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स. तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है वो होती है कार्बन की. अप्रॉक्स 3 मिलियन जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल DNA का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो DNA का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे वो बेसिकली स्टे करता है, कैसे रहता है, बट उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज कंपाउंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मैं बार बार बोल रही हूँ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, टू कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. जैसे मैंने अभी बताया कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो हमारे कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं. तो ये कंबाइन कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन द केस ऑफ प्रोटीन, हैलोजेंस भी होते हैं इन कुछ केसेस में. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. यहाँ जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन, देयर आर हाइड्रोजन्स. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. क्यों, ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपल चेन स्ट्रक्चर.
बट यहाँ पर आप जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी ब्रांच निकली होती है, तो दे आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। और जहाँ पर फ्री साइड्स नहीं होती हैं, फ्री साइड्स नहीं होती हैं, उन केसेस में हम क्या कहते हैं इनको, क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली 3 तरह के कंपाउंड हमने देखे, कौन कौन से, लॉन्ग चेन, ब्रांच एंड क्लोज्ड रिंग टाइप। So classification of hydrocarbons. So how we classify hydrocarbons? मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास के बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो ओपन चेन में बेसिकली हम लोगों ने देखा लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन में फ्री साइड्स नहीं होती है। जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है दे आर ऑफ 2 टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एंड ओपन चेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड हमारे वो कंपाउंड होंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दिस इज अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम लोगों ने पढ़ा कार्बन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज स्पेशली, देन वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड, covalent bond formation and ionic bond formation, then we'll discuss about how many kinds of hydrocarbons are there. So this is about the part 1. Next or rest of the topics we'll discuss on next part, that is part 2. Thank you for today. कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें।